Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Raj Lakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I'm Anaga representing Raj Lakshmi Solutions Private Limited. To today we are here going to talk about the particular import related options, that is ledger and stock item from Excel to Tally. So before moving ahead to the today's topic, let's have a small introduction of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementation and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So now moving ahead with the today's topic. So now the speakers are here. The presentation will be conducted by Ms. Pinaj. So Pinaj, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the live demonstration will be done by Mr. Firoz. So Firoz, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dhandaria. Sir, are you here? Yeah, Anga, I am available over here. Thank you. Hearty welcome all of you. So I now request Firoz and Pinaj to move ahead with your presentations. Hello, good evening all. Myself Pina Sheikh, representing on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited. On behalf of the management and the entire team of Rajlakshmi Solutions, I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead to our today's topic is ledger and stock item import from Excel to Tally Prime. Ledger Excel to Tally software provide you smart Excel template to copy paste your data column wise, or you can import data using smart mapping features. Excel to Tally software provide option to auto create GST ledger per GST number and place of supply. If GST number and place of supply same, create CGST and SGST is create IGST ledger as per ledger pattern. एक्सेल टू टैली सॉफ्टवेयर आपको डेटा कॉलम वाइज कॉपी पेस्ट करने के लिए स्मार्ट एक्सेल टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, या आप स्मार्ट मैपिंग फैसिलिटीज का यूज करके डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं. एक्सेल टू टैली सॉफ्टवेयर जीएसटी नंबर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पर ऑटो जीएसटी लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है. अगर जीएसटी नंबर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है तो जीएसटी सीजीएसटी और ये जीएसटी क्रिएट करें, नहीं तो लेजर पैटर्न वाइज IGST ledger create करें. Why Excel to Tally import utility is better than manual data entry? There are many different sources of data that need to be fed into Tally. That is data from e-commerce website, CRM software, and other software and website. Most of this data can be exported into a CSV or Excel sheet. Those entries can then be imported in Tally or can be imported using Excel to Tally. Excel to Tally import utility which is mostly automatic and require minimum human intervention. डेटा के कई अलग अलग सोर्सेस है जिन्हें टैली में फीड करना होता है. आप ई-कॉमर्स वेबसाइट, CRM सॉफ्टवेयर और एनी अदर सॉफ्टवेयर और वेबसाइट से डेटा रिसीव करते हैं. इनमें से मोस्ट ऑफ डेटा को CSV या एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट किया जाता है. इन एंट्रीज को फिर से टैली में मैन्युअल इंपोर्ट किया जाता है या एक्सेल का यूज करके टैली इंपोर्ट यूटिलिटी में इंपोर्ट किया जा सकता है, जो ज़्यादातर ऑटोमेटिक है और मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड होती है. एरर फ्री डेटा. While entering data in Tally for storing your data, the chances are there are error in it somewhere because human beings make mistake when typing things into computers manually, whether intentionally or unintentionally. By using Excel to Tally, you don't have to worry about such error because your software does not allow any human intervention during the process of importing data from Excel शीट टू टैली सॉफ्टवेयर. आपके डेटा को स्टोर करने के लिए टैली में डेटा एंटर करते समय चांसेस है कि इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि हम कंप्यूटर में चीज़ों को मैनुअल टाइप करते हुए गलतियां करते हैं. एक्सेल टू टैली का यूज़ करके आपको ऐसी मिस्टेक के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
हमारा सॉफ्टवेयर एक्सेल शीट से टैली सॉफ्टवेयर में डेटा इंपोर्ट करने के प्रोसेस में ह्यूमन इंटरफेरेंस की परमिशन नहीं देता है। बेटर रिपोर्टिंग with automatic reporting tools like Excel to Tally, you can get all your accounting information in one place, which make it easier for you to analyze and reach conclusions easily. You will not have to worry about missing record or incorrect entries because your report will be error-free and consistent at all times. Excel to Tally जैसे automatic reporting tool के साथ आप अपनी सभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक ही प्लेस पर रिसीव कर सकते हैं, जिससे आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। आपको मिसिंग रिकॉर्ड या इनकरेक्ट एंट्री के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट ऑल टाइम एरर फ्री होंगी। क्विक एंड एफिशिएंट। अनदर advantage of using Excel to Tally is the fact that it reduces error due to human error during manual data entry processes. This means that your company save time and money because there are less need for correction and re-entries into the system. Excel to Tally का यूज करने का एक और बेनिफिट ये है कि यह मैनुअल डेटा एंट्री प्रोसेसेस में ह्यूमन एरर से होने वाले एरर को कम करता है। इससे आपकी कंपनी टाइम और मनी सेव करती है। टाइम सेविंग। Excel to Tally no doubt is time saving. It imports all entries in just a few clicks. Since all entries are accurate, there is no need to recheck and rework the entries made. Excel to Tally no doubt कि इससे टाइम सेव होता है। यह कुछ ही क्लिक में सभी एंट्रीज को इंपोर्ट करता है। सभी एंट्रीज सही है, सो की गई एंट्री को रीचेक और रिवर्क करने की जरूरत नहीं है। Easy to use. The Excel to Tally software is very easy to use even if you have never used any accounting software before. You just need to follow some simple steps to get started with the tool. Excel to Tally सॉफ्टवेयर का यूज करना बहुत ही इजी है और ये आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में देख सकते हैं। So I request to Firoz sir to proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Thank you so much, Pinachi. Hello everyone, myself Feroz Sayyed, presenting live demonstration on behalf of Raj Lakshmi Solution Private Limited. So guys, आज हम देखने वाले हैं Excel to Tally। जैसे कि हमारे पास Excel में बहुत सारे कुछ ऐसे चीजें रहते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉक आइटम हो गया, हमारा लेजर्स हो गया, पार्टी लेजर्स। अगर ये कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में अगर होगा तो हमारा टाइम बचाने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जैसे कि उसमें हम एक्सेल टू टैली के थ्रू हम हमारा काम आसान कर सकते हैं। अभी मोस्टली देखा जाता है हमारा वन स्टॉक आइटम या फिर लेजर क्रिएशन में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होने से अच्छा है अगर एक्सेल टू टैली अगर हम करेंगे तो उसमें विद इन सेकेंड में हम हजारों से ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे टैली में। तो आज हम देखते हैं, जैसे कि देख लीजिए मेरे पास उसके फॉर्मेट बने हुए। सबसे पहले तो हम देख लेंगे पार्टी इंपोर्ट। अगर हमारे बहुत सारे पार्टी लेजर्स होंगे तो उसको हम क्या करना है, जैसे कि हमारे पास एक एक्सेल फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में हमको पूरा फिल कर लेना है जो भी हमारा लेजर डिटेल्स रहेगा। जैसे कि उसमें पार्टी का नाम आ जाएगा, उसका एलियास रहेगा तो वो आ जाएगा। थर्ड पे उसका जो ग्रुप रहेगा सन्डे डेटर है या क्रेडिटर है। देन उसके बाद में मेलिंग डिटेल में आपको क्या नाम डालना है वो भी यहाँ पर मेंशन कर लेना है। हेलो हाय फिरोज, एक्चुअली योर एक्सेल इज नॉट विजिबल। आपका टैली का स्क्रीन है, आप अपनी एक्सेल शीट को दिखा कर बताएं तो इट्स बेटर ऑलवेज। जस्ट शेयर द इंटायर स्क्रीन। आप इंटायर स्क्रीन को शेयर कीजिए तो आप दोनों सॉफ्टवेयर को सामने सामने दिखा पाएंगे। राइट? ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, कभी दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? ग्रेट। ओके, तो गाइस अभी देख लीजिए जो भी हमारा डिटेल्स रहेगा पार्टी लेजर का तो हमको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट में हमारा स्टॉक आइटम का हमारा लेजर का नाम आ जाएगा। सेकंड में अगर उसका एलियास होगा तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा।
थर्ड में अगर हमको मेंशन करना है पार्टी सन्डी डेटर है या फिर क्रेडिटर है, वो यहाँ से मेंशन कर लेंगे। देन उसके बाद में मेलिंग डिटेल में अगर हमको जो भी नाम डालना है उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। एंड एड्रेस में उसका पूरा पूरा एड्रेस फिल करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एंड एड्रेस 4। उसमें होता है ना कि पूरा एड्रेस आने के लिए पार्ट्स दिए गए हैं, इसी टाइप भी हम हमारा एड्रेस उसमें फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद में उसका पिन कोड आ जाएगा पार्टी का, एंड कॉन्टेक्ट पर्सन नेम जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया है। देन उसके बाद में कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी भी यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमारा फैक्स नंबर आ जाएगा, जीएसटी नंबर आ जाएगा। देन पैन नंबर अगर होगा पैन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि हमारा क्रेडिट पीरियड रहता है तो अपन 30 डेज का देते हैं या फिर 60 डेज का देते हैं, वो भी हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद में ड्यू डेज मेंशन हो जाएगा। एंड उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस हम सेट करते हैं कोई पार्टी का, वो हम एक्सेल के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ मेरा डेबिट अमाउंट डालना है या क्रेडिट, यहाँ से मेंशन कर लेना है। देन इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ टैली में कैसे इंपोर्ट करेंगे। अभी देख लीजिए ये मेरा टैली है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमको फाइल अटैच करनी है जो हमारा कस्टमाइज वाली है। अभी मैं फर्स्ट पे ले लेता हूँ हमारा पार्टी मास्टर विद जीएसटी कोड, ये हमारा फाइल है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर लेने के बाद में उसका फीचर्स दिया है एड ऑन में, जैसे कि इनेबल पार्टी मास्टर विद जीएसटी कोड, मैं इसको यस कर लेता हूँ। यस करने के बाद में फाइल एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद देख लीजिए आपको सेकेंड लास्ट पर ऑप्शन दिया गया है पार्टी मास्टर विद जीएसटी कोड, ये कस्टमाइज किया हुआ पॉइंट है। जैसे कि हम इसको सबसे पहले देख लेंगे कि हमारे पास कोई लेजर है क्या। अभी मेरा फ्रेश कंपनी है, इसके अंदर देख लीजिए कोई भी लेजर क्रिएट नहीं है, ना ही हमारा ग्रुप वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमको जाना होगा जो हमारा एक्सेल फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट पे मेरा ऑप्शन दिया है पार्टी इंपोर्ट फाइनल, जो मेरे शीट का नाम है, उसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद में देख लीजिए नीचे पार्टी मास्टर विद जीएसटी पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपका ऑप्शन देगा कि फाइल पाथ, जो हमारा पाथ कॉपी किया है उसको पेस्ट कर लेना है। जैसे कि मैं पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल वी से। देन उसके बाद में हमारा शीट का जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो मेरा शीट 1 है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में देख लीजिए मैं इसको, अभी ये इंपोर्ट हो रहा है, उसके लिए ऑप्शन आएगा सबसे पहले पार्टी मास्टर विद जीएसटी कोड, तो इसको यस कर लेंगे। यस करने के बाद वो प्रोसेस लेगा। अभी देख लीजिए विद इन सेकेंड में ये लेजर्स इंपोर्ट हो गए, जैसे कि यहाँ पर बता रहे पार्टी मास्टर विद जीएसटी कोड इंपोर्टेड, तो ये इंटर कर लेंगे। उसके बाद में देख लीजिए हम अल्टर करके देख लेते हैं कि आया है कि नहीं। जैसे कि लेजर में जाएंगे, लेजर में आने के बाद में देख लीजिए जो भी हमारे एक्सेल फॉर्मेट में लेजर्स लिए हुए थे वो आपको टैली में कुछ विद इन सेकेंड में ही पूरी डिटेल्स के साथ इंपोर्ट होकर मिल रहे हैं। जैसे कि मैं अल्टर करता हूँ कोई एक लेजर, अभी हमारा ये पार्टी का नाम आ गया। देन उसका एलियास जो हमने डाले थे वो भी आ गया, एंड उसका अंडर क्या लिए थे हमने सन्डी डेटर, वो भी आ गया है। ऑटोमेटिकली क्रेडिट पीरियड से सिलेक्ट हो गया है। देन उसका एड्रेस हमने जो पूरी तरह से लिए थे यहाँ पर आपको क्लियर वे में दिख रहा है, हमने एड्रेस डाले थे पूरा आ गया है। देन उसके बाद में स्टेट आ गया, उसका पिन कोड आ गया, एंड मोबाइल नंबर जो सेट किए थे हमने वो भी आ गया है। उसके बाद प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, इसको यस करेंगे, ये भी उसका प्रॉपर वे में ले चुका है। उसका कॉन्टेक्ट पर्सन, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिकली उसने कैच कर लिया है। देन उसका पैन नंबर हो गया, जीएसटी नंबर हो गया। अभी आप देख लीजिए जैसे कि हमको सिंगल लेजर क्रिएट करना रहता है तो कितना टाइम जाता है। अभी
उससे कम टाइम में हमने देख लीजिए 4 से 5 लेजर हमने इंपोर्ट कर लिए कुछ विद इन सेकेंड ओनली। तो ये हमारा बेनिफिट है एक्सेल टू टैली का। इससे हम बहुत सा ज्यादा जितना भी बड़ा हमारा डेटा रहेगा ना कुछ देर में ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा लेजर का हो गया था। देन उसके बाद में हम देख लेंगे स्टॉक आइटम का। स्टॉक आइटम के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा एक्सेल फॉर्मेट है स्टॉक आइटम का। फिरोज फिर से आप स्क्रीन चेंज करके एक्सेल फॉर्म में दिखाइए। ओके सर। ओके अभी विजिबल है ना सर? यस। ओके सो गाइस अभी देख लीजिए यहाँ पर हमारा ये एक्सेल का फॉर्मेट है। अभी इसमें वन स्टॉक आइटम क्रिएशन में जितनी भी फैसिलिटीज होती है ना टैली में वो सभी पॉइंट्स हमने पहले एक्सेल में मेंशन कर लिए हैं। तो आपको उसके सभी डिटेल्स पहले एक्सेल में फिल कर लेना है। देन वो हम इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर स्टॉक आइटम नेम आ गया फर्स्ट पे, सेकंड पे उसका पार्ट नंबर होगा तो पार्ट नंबर भी आ जाएगा, उसका एलियास आ गया एंड स्टॉक ग्रुप जो भी रहेगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा। यूनिट हो गया, अल्टरनेट यूनिट हो गया। अल्टरनेट यूनिट भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट का बेस यूनिट डालना है एंड उसका कन्वेंशन डालना है एंड उसके बाद स्टॉक कैटेगरी होगा तो कैटेगरी मेंशन कर लेना है। अगर बैचेस होंगे तो यस कर लेना है। मैन्युफैक्चरिंग अगर होगा अपना मैन्युफैक्चरिंग डेट यस कर लेना है। उसका एक्सपायरी डेट अगर लेना है वो भी मेंशन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट हो गया हमारा, स्टैंडर्ड पूरा डेट एंड HSN ये भी ऑप्शन है। देन उसके बाद में उसका टैक्स कितना लेना है जैसे कि CGST SGST हो गया, ये भी आपको यहाँ पर ही मेंशन कर लेना है। उसका सेल्स वैल्यू टाइप हो गया, बेसिस ऑफ वैल्यू। देन उसके बाद में आपका अगर ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा 3000 पीसेस डाला हुआ है एंड उसके बाद आपके एक से ज्यादा अगर गोडाउन होंगे आपके लोकेशन वो भी आप यहाँ पर फिल करके टैली में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका बैच होगा बैच नंबर भी आ जाएगा एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसका क्वांटिटी, अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस का ये पूरी तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको फिल करना है कि इसमें हमको क्या क्या चाहिए जो टैली में आ जाए। तो ये फिल करने के बाद में इसको हम टैली में कैसे इंपोर्ट करें आपको बता देता हूँ। एक्सेल फॉर्मेट क्लियर करो। अभी मैं टैली में देख लीजिए, अल्टर में जाकर देख लेते हैं पहले कोई स्टॉक आइटम है क्या। मैं स्टॉक आइटम में आ गया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में 0 स्टॉक है। अभी यहाँ पर कुछ भी क्रिएट नहीं है एंड उसके बाद में स्टॉक ग्रुप देख लीजिए वो भी 0 है। स्टॉक कैटेगरी भी नहीं है एंड उसका यूनिट ऑफ मेजर जो रहता है स्टॉक आइटम का वो भी नहीं है एंड गोडाउन भी सिंगल है मेन लोकेशन वाला। तो अभी देख लीजिए हम स्टॉक आइटम भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको फाइल को कॉपी कर लेता हूँ जो हमारा एक्सेल फॉर्मेट है, मैंने कॉपी कर लिया हूँ। उसके बाद में टैली में उसका फाइल ऑन कर लेंगे सबसे पहले। ये फर्स्ट पे मेरा उसका फाइल है। देन उसके बाद में एड ऑन में ऑप्शन दिया गया है इनेबल स्टॉक आइटम विद HSN कोड, इसको यस करके सेव कर लेंगे। देन उसके बाद में देख लीजिए आपको सेकेंड लास्ट पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टॉक आइटम विद HSN कोड। अब इसको इंटर कर लेंगे। देन उसके बाद में सेम उसी तरह प्रोसेस है इसका भी। इंपोर्ट में जाने के बाद में आपको पूछेंगे यहाँ पर फाइल का पाथ, तो यहाँ पर पेस्ट कर लेना है Ctrl+V से। देन आपका शीट नेम जो भी होगा शीट नेम यहाँ पर टाइप करके इंटर कर लेना है। इंटर कर लेने के बाद में इंपोर्ट, यस अभी इंपोर्ट हो रहा है। आइटम्स इंपोर्टेड, देखते हैं क्या क्या इंपोर्ट हुआ है। अल्टर में जाने के बाद में स्टॉक आइटम देख लेंगे। अभी देख लीजिए हमारा 0 स्टॉक आइटम बना हुआ था। अभी यहाँ पर उसका एलियास और स्टॉक आइटम का
ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर दिख रहा है। अभी मैं कोई एक स्टॉक आइटम ओपन कर लेता हूँ। देख लीजिए, ओपन करने के बाद में ऊपर स्टॉक आइटम का नेम भी आ गया है, देन उसका एलियास जो डाले थे हमने वो भी आ गया है, पार्ट नंबर भी मेंशन किए थे 101 वो भी आ गया है, और हमारे अंडर उसका जो था स्टॉक आइटम का फिनिश गुड ये भी आ गया। देन यहाँ पर राइट साइड में देखिए सेमी फिनिश गुड हमने 2 टाइप के लिए थे, ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। उसके बाद में यूनिट ऑफ मेजर पीसेस आ गया है, और अल्टरनेट यूनिट देख लीजिए हमने 10 पीसेस का वन नोस रखे थे, तो ये भी ऑटोमेटिकली फिल कर लिया है। उसके बाद में देख लीजिए जीएसटी अमाउंट भी ऑटोमेटिकली सेट हो गया होगा। यहाँ पर देख लीजिए उसका HSN नंबर भी आ गया। उसके बाद में यहाँ पर स्टॉक आइटम का जीएसटी ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है। देन नीचे देख लीजिए हमने ओपनिंग क्वांटिटी डाले थे, ओपनिंग बैलेंस में 3000 पीसेस डाले थे, वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक का हमको डेट डालना होगा, तो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ 1/4/22 और उसका एक्सपायरी डेट डाल देते हैं 1/4/23। इसको अगर रेट डालना होगा तो रेट भी डाल सकते हैं, अदरवाइज सेव कर लेंगे। ये एक स्टॉक आइटम का हो गया। देन अगर पार्ट नंबर वाइज देखना है तो पार्ट नंबर वाइज भी देख सकते हैं, सेम उसी तरह आपको पूरी डिटेल्स में दिखाई देगा। अभी उसके बाद देख लीजिए हमारा स्टॉक ग्रुप कुछ भी नहीं था, अब इंटर करने के बाद देखिए 2 ग्रुप बन गए। स्टॉक कैटेगरी भी नहीं था, स्टॉक कैटेगरी भी बन गया है। एंड उसके बाद यूनिट भी 0 था, 3 यूनिट बन गए। एंड गोडाउन भी हमारा ओनली मेन लोकेशन था, तो ये 3 लोकेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। तो इसी टाइप हम हमारा एक्सेल टू टैली पूरे तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। जितना भी आपका ट्रांजैक्शन होगा सभी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सेल और परचेज एंड ऑर्डर आपके ट्रांजैक्शन होंगे वो भी हम एक्सेल टू टैली इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें टाइम ज्यादा जाता है। अगर हम एक्सेल टू टैली यूज करेंगे तो कुछ ही देर में हम हजारों का डेटा इंपोर्ट कर सकेंगे। एंड स्टॉक आइटम भी होंगे, लेजर भी होंगे, तो सभी के लिए सेम फैसिलिटीज है। विद इन सेकेंड में आप डेटा टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल टू टैली। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। Okay, thank you Pinaj and Firoz for your presentation. So it's a time for an overview of the today's session. So it's over to you, Bhagwati sir. Yeah, thank you Anga and team. So hi, good evening everyone. Myself is Bhagwati Dhandaria. So as usual, we are doing the every Saturday we are doing a new topics according to your demand. So today topic is Excel to Tally. अब मैं सबसे पहले फंडामेंटल ये जानना चाहूंगा वाई एक्सेल टू टैली। टैली में भी तो मैनुअल हम क्रिएशन कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन डू, मैनुअल कर सकते हैं हम। लेकिन चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस है हमारा डे टू डे आइटम, नई आइटमें आ रही है, नए लेजर्स आ रहे हैं हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल हमने टैली अभी जस्ट परचेज किया और हमने अगर पुराना कोई डेटा, अगर हमें डेटा मास्टर अगर फीड करने हैं तो दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस कि हमें काफ़ी टाइम उसमें जाएगा कि मैनुअल एंट्री करना, मैनुअल मास्टर अपडेट्स करना। और आज के डेट में मास्टर्स में इतने इन्फॉर्मेशन देने होते हैं अकॉर्डिंग द कंप्लायंस, अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग आवर रिक्वायरमेंट्स। लाइक किसी भी पार्टी का लेजर्स, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका कॉन्टैक्ट नेम, उसका ईमेल आईडी और उससे रिलेटेड जीएसटी नंबर, टैन नंबर, पैन नंबर, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर, जिसे हमें फिल करने में काफ़ी टाइम जाता है और हमें बड़ी केयरफुली हमने इंपोर्ट करना, मैनुअली एंट्री करनी होती है। दैट्स व्हाई वी हैव नीड कि हमारा कोई अगर एक्सेल में डेटा है और सेम डेटा रिप्लेस होकर के ऑटोमेटिक टैली में अपडेट हो जाए, तो वी कैन गेट द एडवांटेज ऑफ दिस इंपोर्ट टूल्स। सेम वे में डे टू डे, वन टाइम तो हो गया, अभी डे टू डे मेरे पास अगर डेटा आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आइटम की मैं बात करूँ, सो एवरी टाइम वी आर इन द ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारे पास बहुत सी आइटमें ऐसी होती है जो नहीं आती है।
तो नई आइटम जब भी आती है तो उसके हमें मैनुअल अगर मास्टर अपडेट करना पड़े तो अगेन इट विल टेक टाइम। और मे बी जो हम अपडेट करेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर होते ही है, तो जिसके कारण हमें फिर से वो आइटम को रेक्टिफिकेशन वगैरह, एडिटिंग वगैरह, अपडेशन करने होते हैं। और अगर मान लीजिए टैक्स कंप्लायंस की मैं बात करूं, जीएसटी में अगर हमने 12% के 18% की जगह 12% कर दिया या 12% की जगह 5% कर दिया, तो अगेन ए बिग चैलेंज फॉर द फ्यूचर अपडेशंस की, मतलब आज हमारा जीएसटी का रिटर्न ही गलत हो जाएगा। तो ये एक चैलेंजेस है कि हमारी जो नई आइटमें आ रही है तो उसको हमें हर टाइम मैनुअली एंट्री करनी है और उसमें फिर से एरर की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस केस में अगर हमें एक्सेल में डेटा आ रहा है तो डेफिनेटली वी कैन इंपोर्ट द डेटा एंड हेजल फ्री, मेंटल पीस एंड कोई भी एरर्स आपके नहीं है, स्मूथ वर्किंग, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो ये एक सब्जेक्ट है। अब आते हैं हम थोड़ा अलग सिनारियो ले लेते हैं। एक सिनारियो ये होता है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस में हूँ अगर, और डे टू डे मैं ई कॉमर्स से बिजनेस कर रहा हूँ, वहां से मेरे कई ऐसे आइटम्स हैं जो मेरे टैली में नहीं है, मैं उसके ट्रांजेक्शन्स को टैली में इंपोर्ट करना चाहता हूँ या उसके मास्टर को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो अगेन दिस इज अगेन अ बिग पार्ट कि डे टू डे चीजों को करना, मैनुअल करना, इट्स अ बिग चैलेंज। तो यू कैन ऑल्सो सेव दिस टाइम, या हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन कुछ चीजें हैं उसको हमें इंटरेक्शन करना है टैली के साथ में, और अगर मैनुअल हमें करना पड़े इट विल ऑलवेज टेक टाइम, क्योंकि हमारे पास डे टू डे आवर्स में इतना टाइमिंग नहीं है कि हम और ऑपरेशन के वर्क को हम ज्यादा वैल्यू दे पाए, टाइम दे पाए। बट वी हैव नीड एवरी डे, वी हैव नीड अपडेशंस, reports and everything in the single fingertips, because management also expecting report on the time. So this is a challenges for us कि कैसे हम इन चीजों को स्मूथ करता है। तो many of the customers they discuss about this type of the solutions, so we prepare the solutions and they are getting this benefit कि वो उसको use कर रहे हैं और they are getting this advantage and they are saving his time and also peace of mind, they are also peace of the mind. So ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एक्सेल टू टैली का, जिससे आप अपना टाइम सेविंग कर सकते हैं। और बल्क डेटा इंपोर्ट करना, यस इट्स अ वेरी इजी। जहां जैसे फिरोजी ने आपको बताया कि अगर आपके पास 2 4 5 लेजर भी खोलने हैं अगर, तो उसके लिए भी आपको आधा घंटा टाइम चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डेटा है और आपके पास 100 200 500 1000 5000 50000 लेजर्स अगर एक साथ में खोलने हैं, तो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड और मिनट्स, वो आपके डेटा अपडेट हो जा रहे हैं। तो इज ऑलवेज इजी टू इजी टू यूज, इजी टू इंपोर्ट, कोई टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं चाहिए। एक सिंपल पर्सन जिसको सिंपली इंपोर्ट का टैली का नॉर्मल फंक्शन मालूम है, उसको भी पता है कि कैसे कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आइडियाज हैं जिसके ऊपर हमने काम किया है, जिसके ऊपर हमारे काफी कस्टमर्स दे आर यूजिंग दिस सॉल्यूशंस एंड दे आर गेटिंग दिस बेनिफिट। तो टुडे के सेशन में मैं आपको बोलूंगा कि दिस इज अ टूल्स, एंड अगर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए या आपके खुद के स्पेसिफिक कुछ सॉल्यूशंस, अगर कोई टूल्स अगर आपको चाहिए कि मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए, आपका वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो वी कैन डू द कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पर हम डेवलप कर देंगे। So this facility is also there. So today Excel to Tally, yes, this is that's it from my side in terms of the Excel to Tallies. So our other things, yeah, definitely I want to share more informations. You want to know about all this information, so you can connect with your account manager. They are communicating with the Raj Lakshmi with you. एंड आप उनके साथ बात करके इसका और एडवांस का भी डेमो देख सकते हैं, और भी कोई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी डेमो से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी रिकॉर्ड ये चैनल्स हैं, जितना भी हमारा सेशंस हो रहे हैं एवरी सैटरडे, वो सभी सेशंस को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपके जूम चैट में, और यू कैन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड यू कैन गेट द always information, all this information throughout the just notification through the your mobile and etc. So second, आपको हमारा जो YouTube चैनल है जिसमें आप कंप्लीट एडवांटेज ले सकते हैं टैली ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू आर एम्प्लॉय, यू आर ऑर्गेनाइजेशन ओनर, so you can take the advantage, you can learn the tally through our YouTube channels. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, you can learn your tally according your time
according your convenient. So you can take this advantage once you subscribe our YouTube channels. Next, मैं आऊँगा कि time to time we are doing the lot of updations and lot of promotional sales and offers every month. तो इस month के अभी जैसे last week में हम लोग हैं, nearby last week we are here. So हमारे कस्टमाइजेशन जो टैली का इंपोर्ट टूल्स आपने देखा है, ऐसे बहुत से टाइप के हम टूल्स बनाते हैं और आपके हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, जिसके लिए हमने ऑफर रखा है. So you can take this advantage. You can just connect with your account manager. You can also call me. My number is also in your chatbot, and you can take this advantage. You can get the benefits of this offer, and you can run your organization smoothly. Same way, we have a different solution like Tally on Cloud. You can use anywhere in the world. So lot of solutions are here. Just you connect with us and communicate with us. Discuss with us your pain point. Definitely, we are here for your solutions, and you will get the advantage, and you can run your organization smoothly. That's it from my side, Anga. You can. Yeah. Thank you, sir, so much. So if you have any questions, you can do mention in the chat. Sir, is there any questions? What I'm telling you, Anga, people, you can raise the hand. We can discuss here also. That's not any concern. I can give you access, and we can discuss your comments and your questions, and you can also put in the chat. So, Anga, I think there is not any message in the chat bot. Okay. So right time to wind up the sessions. Yeah. Okay. Soon the session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media to get the latest updates. So thank you so much for joining us for today's session. So now we'll wind up the session. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. See you soon in the next session. Thank you, everyone. Bye.